السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں ژالہ باری کے ساتھ طوفانی بارش، درخت اور ہورڈنگز اکھڑ گئے، گھنٹوں برقی مسدود، ٹریفک جام، عام زندگی مفلوج، چار مینار کی گچھی کا حصہ مندر کے احاطے میں گر پڑا۔ بارش سے پیدا صورتحال کے تناظر میں عہدیدار متحرک رہیں، برقی سربراہی اور ٹریفک کے مسائل پیدا نہ ہوں، تمام محکمہ جات تال میل کے ساتھ کام کریں، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ گچی باولی کانچا میں درختوں کی کٹوائی پر سپریم کورٹ نے لگائی روک، طلباء کا جشن۔ BRS حکومت نے سرکاری اراضیات کو تباہ کر دیا، سونے جیسی زمین کو لوٹا ہے۔ تلنگانہ میں معاشی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات دیے جا رہے ہیں، کانگریس لیڈرز کی میڈیا سے بات چیت۔ ریونت ریڈی ریئل اسٹیٹ کے بروکر بن چکے ہیں، راہل گاندھی ریونت ریڈی کو قابو کرنے میں ناکام، KTR کا رد عمل۔ اور اتاپور پولیس اسٹیشن حدود میں نوجوان کی لاش برآمد، بے رحمی سے قتل کا شبہ، پولیس تحقیقات جاری۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
شہر حیدرآباد میں جمعرات کی دوپہر سے شام تک ہوئی طوفانی بارش سے ایک طرف شہر جہاں جل تھل دیکھا گیا، وہیں برقی کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ کئی مقامات پر کہیں گھٹنوں تک تو کہیں کمر تک پانی جمع دیکھا گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد جہاں پر برقی مسدود ہوئی تھی، شام تک بھی برقی بحال نہیں ہو پائی۔ مغربی، مشرقی، شمالی اور جنوبی شہر یعنی پرانا شہر کے کئی علاقوں میں ژالہ باری کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی ہے۔ بعض مقامات سے ہورڈنگز اور درختوں کے گرنے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں برقی سربراہی مسدود ہو گئی۔ چار مینار، گلزار ہاؤس، حسین عالم، خلوت چوک، مدینہ بلڈنگ، پرانا پل، ضیاء گڑھا، چندرائن گٹا، بارکس، یاقوت پورہ، دبیر پورہ دروازہ، چادر گھاٹ، ملک پیٹ، دلسکھ نگر، اعظم پورہ، سکندرآباد کے مختلف علاقوں، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، نامپلی، ملے پلی، منگل ہاٹ، خیرتآباد، شیخ پیٹ، حفیظ پیٹ، قطب اللہ پور، سری لنگم پلی، گوشہ محل، مہاراج گنج، معظم جاہی مارکیٹ، افضل گنج کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی ژالہ باری کے ساتھ طوفانی بارش کی اطلاعات ہیں۔ تلنگانہ کے میدک، سدی پیٹ، رنگا ریڈی، ظہیر آباد، منچریال، آصف آباد، کاماریڈی، سرسلہ، سنگا ریڈی، نرمل سے بھی شدید بارش کی اطلاع ملی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ خلوت اور مدینہ بلڈنگ کے پاس درختوں کے گرنے سے ٹریفک جام دیکھی گئی۔ شہر کے کئی دوسرے مقامات سے ٹریفک جام کی اطلاع ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آنے والے 12 گھنٹوں تک وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برقی محکمے کی طرف سے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن مقامات پر برقی سربراہی مسدود ہوئی ہے، وہاں پر برقی کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بارش کے پانی میں کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی بھی دیکھی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ بارش جی ایچ ایم سی کے حدود میں 75.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ سکندرآباد کے حدود میں 60.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج ہوئی بارش سے عارضی طور پر عوام کو کچھ حد تک گرمی سے راحت ملی ہے۔ دوسری طرف تاریخی چار مینار کی گچی کا حصہ مندر کے احاطے میں گرنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ شدید بارش کی وجہ سے چار مینار کے بالائی حصے سے گچی کا حصہ گر پڑا تھا۔ بارش کی وجہ سے مندر کے احاطے میں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھی مقام واقعہ پہنچ گئی۔ بلدی عملے کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ حیدرآباد میں ہو رہی موسلادھار بارش سے متحرک رہنے کی وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، تمام محکمے کے عہدیدار کو متحرک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً چیف سیکرٹری کو جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے نہ دیں، ٹریفک کا مسئلہ پیدا نہ ہو، برقی سربراہی میں خلل پیدا نہ ہو، اس پر نظر رکھنے کی برقی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جی ایچ ایم سی، پولیس، ہائیڈرا کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جہاں برقی سربراہی منقطع ہو چکی ہے، ان علاقوں میں فوراً مسئلے کی یکسوئی کرتے ہوئے برقی کو بحال کریں۔ نشیبی علاقوں میں پانی میں پھنسے ہوئے عوام کے لیے ضروری راحت کاری کام انجام دیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اضلاع میں تیز بارش کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ انہوں نے ضلع کلکٹرز اور دیگر محکموں کے عہدیداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت دی ہے۔ شہر میں ہوئی شدید بارش سے کئی درخت اکھڑ گئے ہیں۔ کمشنر ہائیڈرا اے وی رنگناتھ نے سوماجی گوڑا میں مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ سڑکوں پر پانی کے جمع ہونے اور اس کی نکاسی کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی، جبکہ درختوں کی صفائی کے کام بھی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ہائیڈرا نے بارش سے متاثرہ دوسرے علاقوں کا بھی دورہ کرتے ہوئے درختوں کو ہٹانے کے سلسلے میں متعلقہ ٹیموں کو ضروری ہدایات دی ہیں۔ سنگا ریڈی میں اچانک موسم بدلنے سے غیر موسمی تیز بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ضلع سداسیو پیٹ عشرت آباد کے علاقے میں ایک چرواہے کی بجلی گرنے سے 21 بکرے مر گئے، جو لچنا نامی چرواہے کی ملکیت تھے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ BRS حکومت نے جائیدادوں کو تباہ کر دیا ہے، اس پر مباحث کے لیے تیار ہیں۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں حیدرآباد کے اطراف موجود سرکاری اراضیات کو کم قیمت میں KTR نے فروخت کر دیا۔
10 साल में सोने जैसी जमीन को लूटने का काम बीआरएस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि मौशी तबाही, आराजियात की तबाही बीआरएस पार्टी ने की है। तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार में आने के केटीआर ने दिन में ख्वाब देखे थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आइंदा इंतखाबात तक बीआरएस की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। रियासत की तरक्की में बीजेपी और बीआरएस रुकावट पैदा कर रहे हैं। एचसीयू आराजी के मामले में अपोजिशन झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी के लिए तमाम बातों का अहाता किया है। काबीना में 2 बीसी तबके से ताल्लुक रखने वालों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस में बीसी तबके के साथ समाजी इंसाफ होगा। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में प्लानिंग महकमा और बीसी कमीशन की निगरानी डेडिकेटेड कमीशन के जरिए मंजूर होने के बाद असेंबली में कानून बनाने के बाद उसकी अहमियत के बारे में सवाल करना जमहूरियत का मजाक बनाना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत के फैसले की तायीद की है। तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर बीसी तबक़ात को बली का बकरा बनाना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना में मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं, कोई मजहबी बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि EWS तहफ़्फ़ुज़ात में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। इस वक्त किस तरह बिल मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र में क्या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं? हिम्मत है तो इसको मनसूख करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बी संजय ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात देने का इख्तियार रियासती हुकूमत के पास है, तो बी संजय मरकज़ी वज़ीर हैं, वो कह दें तो 1 मिनट में मैं अमल करके हम बता देंगे। बीआरएस के साबिक़ वज़ीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने एचसीयू आराजी पर मौजूदा दरख्तों की कटौती पर हुक्म उल्तवा के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यह रेवंत रेड्डी के मुंह पर तमाशा है। हरीश राव ने कहा कि कल ही इनहराफ अरकान के मामले में अदालत की सरजनिश के बाद आज एचसीयू आराजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की है। इख्तिदार का यह मतलब नहीं कि जो मन में आएगा वो करेंगे। कानून देखते रहेगा। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह तलबा की कामयाबी है। एचसीयू के आराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करने वाले तलबा को तेलंगाना समाज की तरफ से इज़हार तशक्कुर करते हैं। कौमी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर ने कहा कि तेलंगाना में आबादी बीसी तबके की है, क्या उनसे किए गए वादों को पूरा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल बीआरएस हुकूमत में बीसी तबका बदजन हो गया था। रेड्डी तबके पर भरोसा करके वोट दिया है। रेवंत रेड्डी की 15 माह की हुकूमत में बीसी तबके से किए गए वादे को पूरा नहीं किया। अब बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करके MIM को फ़ायदा पहुंचाने की रेवंत रेड्डी साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वक्त गुजारी करके मरकज़ पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर बीसी तबके से किए गए वादों को पूरा नहीं करेगी तो इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ को करारदाद रवाना करने के बजाय इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मौका था। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की आराजी के तनाज़े और तलबा के एहतजाज पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि यूनिवर्सिटी की आराजी हैदराबाद की आवाम की मिल्कियत है। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को KCR हुकूमत के अच्छे कामों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तलबा के एहतजाज के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी डिक्टेटर का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। हुकूमत आज एक मजाक बन चुकी है। KTR ने कहा कि हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे और यहाँ पर एक अजीम इको पार्क कायम किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राहुल गांधी तलबा के एहतजाज पर खामोश क्यों हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट के ब्रोकर बन गए हैं। क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है कि रेवंत रेड्डी पर काबू रखें। నేనేమంటా ఉన్నా అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రజాపాలన అంటే విద్యార్థుల జుట్టు లాగడం, ఆడపిల్లల బట్టలు చింపడం, ఒక న్యాయం కోసం వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు ఒక ఇంచు భూమి వాళ్ళదా, ప్రైవేట్ భూమి ఏమన్నా, ప్రజల కోసం హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. అక్కడ చదువుకునే పిల్లల్లో 70-75% మంది పిల్లలు మన రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా కాదు. వాళ్ళ పాపం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి 2-3 ఏళ్ళు ఇక్కడ చదువుకొని 4-5 ఏళ్ళు చదువుకొని PhD చేసేటోళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రేమ మీద నీకు అరపైసా అన్నుందా, అనుమాత్రం ఉందా? వాళ్ళు హైదరాబాద్ కోసం వాళ్ళు పోరాడుతుంటే, హైదరాబాద్ భవిష్యత్ తరాల కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతుంటే కనీసం ముఖ్యమంత్రివి 4 కోట్ల మందికి ప్రతినిధివి అన్న ఇంగితం నీకుందా? సిగ్గనిపిస్తలేదా? కనీసం డబ్బు కోసం ఇంత దిగజారాలా, ఇంత తప్పుడు పనులు చేయాలా? నేను జగదీష్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, 14,000 ఎకరాలు మేము హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ కోసం సేకరించాం. ఎస్, మాకు కూడా ప్రతిఘటన ఎదురైంది, మాకు కూడా ఇబ్బందులు అయినాయి. ఒప్పించి మెప్పించి మొత్తానికి కోర్టు కూడా అన్ని సరైన వివరాలు సమర్పించి మేము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ తెచ్చి
అన్ని చేసి 14,000 ఎకరాలు హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ అని చెప్పి ఒక గ్రీన్ ఫార్మా సిటీ కడతామని చెప్పి మేము సేకరించాం. ఇవాళ నువ్వు దాన్ని 4th సిటీయో 420 సిటీయో కడుతున్నావు నువ్వు అక్కడ. నేను అడుగుతున్నా, మరి అక్కడ 14,000 ఎకరాలు నీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు, మేము వడ్డిచ్చిన విస్తరలాగా నీ చేతిలో పెట్టినప్పుడు ఈ 400 ఎకరాల మీద ఎందుకు పడ్డావు? అక్కడ 14,000 ఎకరాల్లో కట్టచ్చు కదా. నువ్వు కట్టే ఐటీ పార్కులు, నువ్వు కట్టబోయే ఏఐ సిటీ, నువ్వు కట్టబోయే ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం. सुप्रीम कोर्ट ने कांचा गच्चीबौली में दरख्तों की कटवाई पर रोक लगा दी है. वाज़ेह है कि गच्चीबौली में वाक़ई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU में गुज़िश्ता चंद दिनों से तलबा का एहतजाज भी जारी था और दरख्तों की कटवाई भी हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को इस मामले की समाअत हुई और आला अदालत ने 400 एकड़ आराजी पर ताहुक्म सानी किसी भी तरह की कार्रवाई और कटवाई पर रोक लगा दी है. दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी इस सिलसिले में उबूरी अहकाम जारी करते हुए किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांचा गच्चीबौली में दरख्तों की कटवाई के काम पर लगाई गई रोक का हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU के तलबा की तरफ से इस्तकबाल करते हुए जश्न मनाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्मसानी रोक लगाई है और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को भी अहकाम की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है. आला अदालत ने तेलंगाना के हुकाम को 16 अप्रैल तक इस सिलसिले में रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत दी है. दरख्तों की कटवाई और 400 एकड़ की आराजी मामले पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं. दूसरी तरफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आराजी को हुकूमत की तरफ से मुबैना तहवील में लिए जाने के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी है. जुमेरात को भी तलबा ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में एहतजाज किया. कैंपस में तैनात पुलिस की तरफ से तलबा को गिरफ्तार किया गया. वाज़ेह है कि 400 एकड़ की आराजी पर हुकूमत अपना दावा पेश कर रही है, जबकि तलबा इसकी मुखालिफत कर रहे हैं. तलबा का कहना है कि हुकूमत आराजी को जबरन हासिल करना चाहती है. सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदिया के ओहदेदारों के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया. इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के सिलसिले में GHMC की HRDC हाउसिंग के ओहदेदारों के हमराह बातचीत की और ज़रूरी हिदायत दी. उन्होंने ज़ैर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत दी ताकि नए मंजूरा कामों को शुरू किया जाए. अलावाजी उन्होंने ड्रेनेज लाइन का साफ सफाई और दूसरे उमूर पर भी बात की. उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपए के नए कामों की मंजूरी हासिल की. इजलास में बलदिया के ओहदेदारों के अलावा हल्का असम्बली मलकपेट के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने जुमेरात को कांग्रेस के साबिक सदूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की. असम्बली में BC तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के बाद तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की आला क़यादत से यह पहली मुलाकात थी. इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन पूनम प्रभाकर, अनिल कुमार यादव, प्रकाश गौड़, रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी के अलावा दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे. कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने श्री रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के गुजरगाहों का मुआयना किया. कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शोभा यात्रा के लिए 20,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जाएगा. कमिश्नर पुलिस ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसर इंतजामात को यकीनी बनाएं. यात्रा की मुंतजिमीन से भी ताउन की अपील की गई है. शोभा यात्रा 6 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सीताराम बाग से शुरू होगी और सुल्तान बाजार, हनुमान वैमशाला से होते हुए गुजरेगी. जुलूस की गुजरगाहों पर CCTV कैमरे भी रखे जाएंगे. शी टीम और CCS को भी तैनात किया जाएगा. There are three main processions which are conducted by the Bhagyanagar Sri Ramnavami Utsav Committee, one led by President Mr. Bhagwant Rao, then another by Mr. Anand Singh and another by MLA Goshamal Raja Singh. All three processions are coordinated and they go through this route of 6.2 kilometers to Hanuman Vayamshala from Sitaram Bagh temple area. So for this, all departments have been invited today. The organizers of these processions have expressed their doubts and their requests for certain works to be done, civic works and other facilities which have to be provided to the processionists like drinking water, electricity
continuous water supply of electricity also is a very, very crucial thing. And from law and order angle, police as usual will be deployed in big numbers, almost the entire city police, because there are more than 200 processions which will be going around, and about 50 of them will come and join in this procession, which is going from this main procession is going from Sitaram Bank Temple to Hanuman Vayamshala. So we all have agreed to coordinate, start the procession well in time and finish on time, and let the occasion be a joyous one as it is supposed to be. And wherever there are pressure points, we have agreed to work on the height of the idols, the tuskers, length of the vehicles which have find difficulty in turning in these big small roads which are there on en route, and we will do dry runs on one day before, on April 5th, to ensure that the peace and harmony, which is the hallmark of Hyderabad city, despite all the trouble everywhere in the country, Hyderabad city continues to maintain the Ganga Jamuni Tehzeeb and ensure that all festivals of all communities are celebrated in a grand fashion, but without causing any inconvenience to the other community. That is the hallmark of Hyderabad, and we shall continue to maintain that spirit. Thank you. लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूर नशीन और कांग्रेस के अरकान मुक़न्नह ने हज हाउस में एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी ने इस बात का एतराफ़ किया कि वक्फ बोर्ड मुख्तलिफ अमूर में कोताहियों का मुर्तकिब रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि वक्फ बोर्ड वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है, अदालती मुक़द्दमात की मौसर पैरवी में नाकाम रहा, इस पर अज़मतुल्लाह हुसैनी का कहना था कि साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर में भी वक्फ को लेकर कोताहियाँ हुई हैं। ताहम अब हमारी कोशिश रहेगी कि वक्फ की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तेलंगाना BRS पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। वाज़ेह है कि BRS पार्टी से तकरीबन 10 अरकान असम्बली ने इनहराफ किया और BRS पार्टी की तरफ से मुनहरिफ करने वाले अरकान असम्बली के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और उन्हें नाअहल करार देने की दरख्वास्त की गई थी। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम की जानिब से सऊदी अरब में वेयरहाउस एसोसिएट की मुलाजिमतों के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, तजुर्बा 2 साल और उम्र 22 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस मुलाजिमत के लिए तनख्वाह 1800 सऊदी रियाल होगी। मुलाजिमत की औकात 9 घंटे रहेंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को रवानगी का टिकट दिया जाएगा। सऊदी अरब में रिहाइश और ट्रांसपोर्टेशन फराहम किया जाएगा। पासपोर्ट पर ECNR लाजमी होना चाहिए। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। औसत अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ियत लाजमी रहेगी और बुनियादी कंप्यूटर मालूमात भी होनी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवारों को कंपनी मेडिकल और इंश्योरेंस भी फराहम करेगी। ख्वाहिशमंद इस ईमेल एड्रेस पर अपना बायोडाटा रवाना कर सकते हैं tomcomassociate@gmail.com या फिर इन मोबाइल नंबरात 701-3361343 या 9985433931 या फिर 7893566493 पर रब्त किया जा सकता है। रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में मोहम्मद रहीम नामी नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हसन नगर महबूद नगर के साकिन मोहम्मद रहीम की लाश मीरालम तालाब के पास पाई गई। सुबह चहलकदमी करने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना किया। शुबा किया जा रहा है कि साथियों के साथ बहस व तकरार के बाद रहीम का कत्ल कर दिया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज,
शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में ज़ालाबारी के साथ तूफानी बारिश, दरख्त और होर्डिंग्स उखड़ गए, घंटों बरखी मसदूद, ट्रैफिक जैम, आम जिंदगी मफलूज। चार मीनार की गच्ची का हिस्सा मंदिर के अहाते में गिर पड़ा। बारिश से पैदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में ओहदेदार मुतहर्रिक रहें, बरकी सरबराही और ट्रैफिक के मसाइल पैदा न हों। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें, वजीर आला की हिदायत। गच्चीबौली कांचा में दरख्तों की कटवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तलबा का जश्न। BRS हुकूमत ने सरकारी आराजियात को तबाह कर दिया, सोने जैसी जमीन को लूटा है। तेलंगाना में मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ्फुजात दिए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर्स की मीडिया से बातचीत। रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट के ब्रोकर बन चुके हैं। राहुल गांधी रेवंत रेड्डी को काबू करने में नाकाम, KTR का रद्दे अमल। और अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवान की लाश बरामद, बेरहमी से कत्ल का शुबा, पुलिस तहकीकात जारी। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।